Hello and welcome to an inspiring and adventurous episode of Ek Mulaqat. You're with me, Florence, and right now I am at the Sports Authority of India in Guwahati. Friends, our special guest for today is popularly known as the Marathon Man from Sikkim. This 49-year-old father of two sons has already placed his name in the Limca Book of Records in 2012 for successfully completing his solo marathon run along the foothills of Himalayas. Well, he has also made our country proud by winning a silver medal in May 2017 at the Mount Everest Marathon. Well, friends, we'll be meeting this amazingly strong man from Sikkim very soon in this very episode. But before that, I would like to show you a short audio visual on him. It's early in the morning, warming up for a hectic schedule which has all elements of rigor embedded in the stretches he undertakes. Amar Subba is all balance and poise. Combining elan with pure, unchained physical effort, the endurance of the man is seen to be believed. It can only be understood in the daily routine of this man that how much efforts actually goes in the setting of the innumerable records that Amar has etched in stone. There are spirits that prove his agility beyond doubt. The Marathon Man of Sikkim runs 8 kilometers every day to keep in shape. Keeping himself prim and proper under all challenging conditions, Amar Subba trains in different weather conditions like sunny days, chilly nights, and also higher altitude conditions. The great autobiographies chronicling the various achievements of the amazing mountaineer, Tenzing Sherpa, has always inspired him. Amar Subba is an embodiment of human perfection in the grand world of endurance known as marathon running. Well, viewers, I'm sure you enjoyed this short video clipping, and right now I'm very happy to share with you that I have with me the man on a mission to do the most amazing runs across the treacherous and difficult terrains which he calls his second home, and he is the super marathon man from Sikkim, Shri Amar Subba. Hello, Amar Subba. Hello. And welcome to our show. Thank you so much. Well, it's so good to Thank have you you so on much. our show. और आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा. आपको यहाँ गुवाहाटी में कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड क्योंकि वेदर इज बहुत अच्छी है क्योंकि गर्मी नहीं है. Okay. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत सालों के बाद गुवाहाटी आए हूँ. आप सभी से मिला, ये सबसे बड़ी बात और सबसे बहुत अच्छा. तो आप तो पहाड़ों में घूमते रहते हैं, मैराथन्स करते हैं, तो आपको ये पहाड़ों से प्यार कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली क्या कैसे बताऊँ आपको, कैसे फील ये बताऊँ क्योंकि मेरा स्टार्टिंग ही दुख से स्टार्ट हुआ. तो देन आफ्टर आई लव माउंटेन्स. ये माउंटेन में रहता हूँ. माउंटेन में एक पॉल्यूशन नहीं होता है और वहाँ पे स्वच्छ एयर, तो इसी वजह से माउंटेन्स अट्रैक्ट करते हैं. हम बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आपके लाइफ के बारे में, लेकिन हमारे दर्शक अभी ये जानना चाहते हैं कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2012 में आपका नाम क्यों और कैसे आया? एक्चुअली गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच. क्योंकि लिम्का रिकॉर्ड जो मैंने किया था इज़ वेरी चैलेंजिंग और टफ, क्योंकि फर्स्ट सोलो अलोंग द हिमालयस रनर्स बना था मैं इंडिया का. क्योंकि माउंटेन में जो भागना था विदाउट मेडिकल सपोर्ट, ये सबसे चैलेंजिंग था. क्योंकि मैंने उसमें सेक्रीफाइस किया था लाइफ. कि जब मैं उस टाइम ये मेरा मैं सोचता था कि अगर ज़िंदगी में मैं 17 साल तक जीत रहा हूँ, कुछ नाम ही ना हो तो क्या फ़ायदा. तो चैलेंजिंग स्टार्ट किया.
तो हो जाए लाइक अ हॉलीवुड मूवी। राइट। तो कितने दिन लगे आपको वो सोलो मैराथन कंप्लीट करने में? टोटल 7 डेज, क्योंकि उस टाइम आपने खुद मैं अकेले था, तो मैप देख के चलते रहता था। वहाँ जो ऐसा जगह है, वहाँ पे प्लेसेस है जो कि उस टाइम दैट टाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी, और पूरा स्नो फॉल हो रहा था। -15 डिग्री टेम्परेचर हाँ और विदाउट मेडिकल हाँ जी। तो उसके लिए आपने कैसी तैयारी की? आपने अपने आप को कैसे तैयार किया फिजिकली एंड मेंटली? एक्चुअली उससे पहले मैंने माउंटेनियरिंग HMI दार्जिलिंग से बेसिक एडवांस कोर्स किया था। ओके। क्योंकि ये ज़रूरी है, उसकी वजह से वही मेरा सबसे उसका नॉलेज था, इसकी वजह से मैंने सर्वाइव किया उस ग्रेट अमर, आपने सिक्किम का नाम रोशन किया, हमारे कंट्री का नाम रोशन किया। तो 2011 से आपका मैराथन ये जो है फेम शुरू हुआ। उससे पहले अमर सुब्बा 2011 से पहले क्या करते थे? अमर सुब्बा उससे पहले मैंने आर्मी भी किया था 3-4 इयर्स, क्योंकि मेरा पिताजी फौज में भी था। देन आफ्टर मैं मलेशिया गया था। देन आफ्टर रिटर्न बैक फ्रॉम मलेशिया मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो आप मैराथनर बन गए? हाँ जी। ग्रेट। तो आपके अपब्रिंगिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। मैं वेस्ट सिक्किम में जन्म हुआ था मेरा। दैट टाइम सिक्किम अलग ही कंट्री था। ओके। ये तो आफ्टर 75 के बाद सिक्किम 1969 या हाँ जी। अपने पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, मेरा पेरेंट्स फादर अभी क्या बताएं, वो 13 में I'm so sorry, 2013 में ऐसा हो गया था, यहाँ गुजरा था। तो मेरा फादर ही वाज फुटबॉल प्लेयर्स, वो सिक्किम किंग टीम में फुटबॉल खेलते थे, वो प्ले करते थे, और आर्मी में भी फुटबॉल ही खेलते थे, और क्लर्क भी था। इस तरह तो उनसे आपको बहुत इंस्पायर्ड बाय देम रियली। आपका बचपन कैसा था? बचपन में थोड़ा राउडी कैसा टाइप का, मैं थोड़ा ऐसा, मतलब आपको काफी मुश्किलों का सामना हाँ नहीं, किस वजह से? नहीं, बहुत सारी वजह से, बहुत से क्या, कोई मेरे अपने खुद शायद मेरा भाग्य ऐसे था कि एक मैं आपको बताऊंगा, आई वाज इन द रोड लिटरली सम पॉइंट इन द पास्ट, बट नाउ दिस रोड हैज गिवन मी एन आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट। तो आपको शॉर्ट में, क्योंकि बताऊंगा बहुत सारी लंबी कहानी है। आपने जिंदगी गुजारी आपके ओके। तो काफी टफ रहा आपका चाइल्ड, लेकिन नॉलेज क्योंकि आपको इस दुख से शायद कुछ सीखना था। और आप आज इतने बड़े मैराथनर बन गए, आप हमारे कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। वेल अमर सुब्बा, और हम आपसे बहुत कुछ बातें करना चाहते हैं। आप हमें बताइए कि सिक्किम में मैराथन का इतना जोश क्यों है, कैसे शुरू हुआ? अब देखिए, सिक्किम अभी देखिए वर्ल्ड में पॉपुलर है ऑर्गेनिक मिशन या समथिंग, बहुत से स्वच्छ भारत के मिशन की वजह से, ऑर्गेनिक स्टेट की वजह से भी। जब मैं पहले भागता था कि अमर सुब्बा ये भैया पगला गया क्या दौड़ रहा है, कुछ लेके भाग रहा है, लेकिन अभी जो भागते सभी को थम्स अप। अभी वही लोग आपको सलाम नहीं, वही होना चाहिए ये भी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी महान इंसान, कोई भी अच्छे बंदा, जो भी बहुत सारे उसने ऐसा अचीवमेंट, उसको पगला या टाइटल मिला है, लेकिन बाद में वो माइंड भी नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये संसार का नियम है। अब लोगों को पता चल गया है व्हाट इज द अहमियत, एक रन की अहमियत, वो हेल्थ के लिए, क्योंकि सभी अब हेल्थ कॉन्शियस हुआ है ना, अभी काफी कंट्रीब्यूशन है आपका इसमें। हाँ जी। ग्रेट अमर, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, हमको भी बहुत कुछ हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे दिल कर रहा है कि मैं साई के इस ट्रैक में आपके साथ थोड़ा दौड़ लगाऊं। तो हम जरूर दौड़ लगाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। तो आइए कहीं चलकर बैठते हैं। श्योर प्लीज। दोस्तों, अभी हम साई के इस सुपर ग्रीन फील्ड में बड़े कंफर्टेबली बैठे हैं। यू आर विद मी फ्लोरेंस एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद द आयरन मैन फ्रॉम सिक्किम, श्री अमर सुब्बा। अमर सुब्बा, 2012 में आप का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया, लेकिन उसके बाद भी आपने मैराथन जारी रखे।
आपने बैंगलोर में पार्ट लिया, मुंबई में गए, आप हैदराबाद भी गए। सो बैंगलोर के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। जब पहली बार आप गए तो आपको 10th पोजीशन मिला था मैराथन में, लेकिन जब आप दूसरी बार गए तो आप और अच्छा रैंक लेकर आए। एक्चुअली जब मैं पहले स्टार्ट किया था दैट टाइम मेरा टेक्निकली साउंड नहीं था। तो बेंगलुरु में मैं फर्स्ट टाइम 2012 में गया था 100K के लिए। तो उस टाइम मेरा टेक्निकली साउंड नहीं था, तो उसकी वजह से मैं इंजर हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि लकीली आई कंप्लीट वो कंप्लीट किया मैंने। तो बाद में फिर 2014 में मैं गया बेंगलुरु में, वो 12 आवर्स स्टेडियम चैलेंज 12 घंटे का था। तो पहली बार इंडिया में 12 घंटे का कंपटीशन रखा था IDB फेडरल वाले। तो उस टाइम गया था, तो दैट टाइम आई वाज 45 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। तो मैंने उस टाइम 96 किलोमीटर कवर करके 3rd पोजीशन लिया था। वाओ, तो आप that is बाजी the- जीत कर के आए। बहुत इंटरेस्टिंग है आपका सफर। और आप चाइना भी गए थे, यू रिप्रेजेंटेड इंडिया। या सो हाँ जी, हाँ उस वक्त का एक्सपीरियंस हमें कुछ बताइए। हाँ, चाइना में भी गया था मैं। इसके लिए वो विक्रम पाड़िका साहब को मैं नेपाल के जो है उनको मैं उनको दिल में रखता हूँ। और वो ही गेव मी द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गया था। तो चाइना में गया था, लेकिन हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं। लेकिन चाइना गवर्नमेंट के थ्रू इन्विटेशन आया था लेटर कि यू क्या आप यहाँ पे आ जाओ, इन्विटेशन लेटर में रिप्रेजेंट करो एशियन माउंटेन। ये सबसे बड़ी बात है। और वहाँ भी बहुत सारे सीखा मैंने कि लाइफ क्या है, ये स्ट्रगल क्या है, ये चीज़ रहता है सबसे बड़ी। ग्रेट, आप जहाँ पे भी आते हैं इतना सीख कर आते हाँ हैं। जी, योर ग्रेटनेस अमर। और आप सिर्फ मैराथन ही नहीं करते, आप तो माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते हैं। हाँ हाँ, तो ये माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक आपको कैसे, और मैंने आप कहाँ कहाँ किया? एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आपको बताऊंगा। मैं बिफोर मैराथन बिफोर मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स में था, मतलब एडवेंचर माउंटेनिंग में था। मैं गाइड वगैरह करता था वहाँ पे। हमारा वेस्ट में कंचनजंगा वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है कंचनजंगा। तो वहाँ पे ट्रैकिंग चलता है। तो आफ्टर मलेशिया के बाद आफ्टर मलेशिया में ट्रैकिंग किया था मैंने, पोर्ट्रेट किया था, ट्रैकिंग गाइड किया, देन आफ्टर माउंटेनिंग किया था। हाँ, तो देन आफ्टर मैंने सिक्किम गवर्नमेंट की तरफ से मैंने माउंट तेंजिंग खांग भी सबमिट किया था 2014 में 601 मीटर एवरेज सेलेक्शन के लिए। अभी रिसेंटली भी आपने किया माउंटेन क्लाइंब? हाँ हाँ, माउंट तेंजिंग खांग 601 मीटर वेस्ट सिक्किम हिमालय में। वो कौन से ईयर में था? 2014 में। 2014 में। ग्रेट। लेकिन मेरा एक लक्ष्य है कि कोई भी एज इज़ नथिंग मेरे लिए, लेकिन एक माउंट एवरेस्ट सबमिट करना है मुझे। लेकिन क्या है कि पैसा इन्वेस्ट करके नहीं, जब अपॉर्चुनिटी मिले रेडी रहता हूँ एवरी टाइम। भगवान आपको वो अपॉर्चुनिटी दे देता है। थैंक यू सो मच। कि आपको दिल में थैंक यू सो वो मच। चाह है। थैंक यू सो अच्छे मच। लोगों के साथ अच्छे हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ही होता है ना अमर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हमें और एक बात बताइए कि आप जब ऐसे लंबे एक्सपीडिशंस पर निकलते हैं, मैराथन्स पे निकलते हैं, तो आप अपना डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं? क्या क्या खाना खाते हैं? ये आपने सही बात की है। एक्चुअली क्या है कि जो भी आदमी इंसान जब ऊंचाई में पहुंचते हैं कि बोले ये खाए ये प्रोटीन ये नहीं रहते हैं। जब आदमी स्टार्ट करते हैं वो क्या खाता है, सिंपल खाना खाते हैं, बस चावल खाता है, रोटी खाता है, वही चिकन खाता है, वो फिश खाते हैं। लेकिन जो उसके दिल में जो स्ट्रगल तमन्ना रहते हैं वो ये लक्ष्य में पहुँचे, वो सबसे बड़े। जब ऊंचाई में पहुँचने के बाद उनको स्पॉन्सर मिलते हैं एडिडास से कि एडिडास पहन के चलो। पहले मैंने स्टार्ट किया था लिम्का बुक रिकॉर्ड में, वही जूता सिंपल इंडियन शूज़ पहना था 300 समथिंग का, कि वो रोड में भी वही पहन के चलो, वही माउंटेन में वही पहन के चलो। लेकिन बाद में कि हम लोग जूते पहनते रहते, कभी स्पॉन्सर होते, लेकिन एक्चुअली स्टार्ट करते हैं ना, डाइट वही रहता है सिंपल। मैं अभी भी वही डाइट खाता हूँ मैं। हाँ, मैंने अभी तक मैंने सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया मैं सप्लीमेंट लेता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में ये चीज़ से बनती है ना, सब प्रोडक्ट्स होती है, तो ये सब चीज़ मिलता है। हाँ, प्योर चीज़ है। हाँ, तो मैं वही सबसे लोएस्ट प्राइस का मैं चावल खाता हूँ, LS चावल बोलता है ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलते हैं, जैसे आलू। हाँ, आलू में देखो, रोटी में देखो, इसमें चना में देखो, चिकन में, इसमें सब चीज़ है। लेकिन आदमी को डाइट के नहीं, आपको जो जुनून होना चाहिए कुछ चीज़ के लिए, पैशंस मैंने आपको बोला ना, वो धैर्य कि अचीवमेंट 2-3 साल में नहीं मिलते हैं, बहुत सालों लगते हैं उसके पीछे भागना चाहिए। माउंटेन क्लाइंबिंग पर निकलते हैं, हाँ, हाँ।
go for mountain scaling. तो आप उसमें क्या करते हैं? मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐसे कुछ हल्का खाना? नहीं, क्या है कि मैक्सिमम पानी ज़्यादा पीता हूँ मैं। Okay. क्योंकि सिकनेस रहता है, अल्टीट्यूड सिकनेस रहता है, पानी ज़्यादा पियो, जितना ज़्यादा खाओ, अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होना चाहिए। Alright, और देन आफ्टर फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ इज़ जो फिटनेस रहना चाहिए। Okay. और उसमें क्या खाता हूँ, वही सिंपल, वही जो मैं पहले कितने बोला। जोड़े कपड़े आप लेकर जाते हैं बैग में? हाँ, थोड़ा आप उसमें 10-15 दिन के लिए निकलते हैं एक बार में? नहीं, माउंटेन एडवेंचर है तो एक थोड़ा गर्म पहना, जैकेट वगैरह ले लूँ, Okay. वही 15 दिन में वही पहन के वापस आ So जाओ। you travel light. क्योंकि वहाँ पे हैंडसम के लिए नहीं जा रहा है ना, वहाँ पे आपका एडवेंचर बैग में ज़्यादा चलता heavy भी तो है। नहीं हो थोड़ा सकता। सा, हाँ, थोड़ा सा बैग लेके जाता हूँ Right. बस। सो ये जो आप जाते हैं इतने लंबे लंबे एक्सपीडिशंस पर, तो ये अपने खर्चे पर जाते हैं या आप स्पॉन्सर्स के लिए? कितना मुश्किल है स्पॉन्सर्स मिलना? एक्चुअली जब तक आदमी को आइडेंटिटी ना मिले वो तो स्ट्रगल ही रहता है, क्योंकि और होना भी ज़रूरी है अभी। क्योंकि इंसान को कोई भी चीज़ हासिल, मैंने पहले भी बताया कि एक बार में नहीं मिलता है, बहुत टाइम लगता है। मैंने इस चीज़ में मेरे पिताजी को मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं पिताजी की वजह से हूँ। क्योंकि मेरे पास उतना पैसा था ना, मैं बैचलर भी था ना, मेरा बच्चे भी था, तो उनको पढ़ाना भी, समाज में भी कुछ करना है, तो मैंने आई हैव सेल द लैंड। Okay. मैंने लैंड सेल कर दिया। पापा ने बोला कि चलो तो कुछ पाने कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अगर वो सो ज़मीन बेचकर आपने अपने सपनों को पूरा किया? हाँ जी, हाँ जी, ये ज़मीन तो आएंगे किसी दिन, लेकिन अगर जो ज़मीन साथ में रहने से अगर मैं ये नहीं बनता था। तो अभी आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं? हाँ, अभी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम में कभी बुलाते करते, अभी इसी में डिपेंड। शुरुआत में आपने अपनी हाँ, तरफ से लेकिन सारा आइडेंटिटी होना जरूरी है। विदाउट आइडेंटिटी आप बैंक में भी जाएंगे, वो कुछ तो मांगेंगे ना। तो अपने पैशन को पूरा करने के लिए आपने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किया मॉनिटरिंग? नहीं, ये सेक्रीफाइस नहीं, ये काफ़ी लर्निंग मेहनत है। भी किया। हाँ, ये एक्सपीरियंस है ना, ये चीज़ हम लोग को होना चाहिए। राइट। वेल अमर, काफ़ी देर से हम यहाँ बैठे हैं, आप बैठे बैठे थक गए होंगे, तो आइए आपको हम और भी सैर कराते हैं। ठीक है, प्लीज़ मैं आपको थैंक यू। सो अमर सुबह, आपने 2017 में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स में पार्ट लिए, मैराथन्स में पार्ट लिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ थोड़ा Please, बैठते हाँ। हैं। प्लीज़। यहाँ कंफर्टेबल है ना? हाँ, ठीक है ऐसे। सो अमर सुबह 2017 में आपने काफ़ी सारे मैराथन इवेंट्स में पार्ट लिए, लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो है आपका स्पिरिचुअल रन, जो आपने लॉर्ड बुद्धा के बर्थ प्लेस से लेकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक किया। तो ये स्पिरिचुअल रन करने का ख्याल आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली मुझे ख्याल तो था नहीं, लेकिन एवरेस्ट मैराथन जाने की इच्छा थी मुझे। था मुझे कि लकीली विक्रम पाड़ेका जी साहब जो नेपाल में रहते, जो एवरेस्ट मैराथन ऑर्गेनाइजिंग का मेन बॉस है, उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था कि अमर, यू कम टू नेपाल और लुम्बिनी से ऐसे स्पिरिचुअल रन करनी है, 300 किलोमीटर लुम्बिनी से लेकर एवरेस्ट बेस कैंप, देन आफ्टर उसके बाद फिर एवरेस्ट मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आपने 2017 में किया, एंड यू ब्रॉट अ सिल्वर मेडल फॉर आवर कंट्री, और वो था माउंट एवरेस्ट मैराथन। सो वहाँ पे चाइना को फर्स्ट रैंक मिला और आपको सेकंड रैंक। तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ? वो फील ऐसे रहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने स्टेट और इंडिया के लिए, मैं यही सोचता हूँ मैं, और कुछ मैं कुछ करता हूँ तो कमिंग जनरेशन उसको सीखे। आपका नाम ही अमर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, काम की वजह से, अगर नाम हो, काम ना हो तो फिर। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, आप फिट रहने के लिए इंस्पिरेशन दे रहे हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग हैं आप, और इससे और स्ट्रॉन्गर इंस्पिरेशन क्या हो सकता है। सो अमर सुबह, और भी बहुत चैरिटी रन्स आपने किए हैं, जैसे नेपाल के अर्थक्वेक के भी विक्टिम्स के लिए भी आपने फंड मैराथन्स किए हैं। तो ये फंड रेजिंग जो आपकी चैरिटी रन्स है, ये आपने क्यों शुरू किया? एक्चुअली हम लोग जिस चीज़ में होते हैं उसमें अध्ययन करना ज़रूरी है। तो मैंने भी
गूगल्स में देखा था कि मैराथन से क्या क्या करते हैं, मैराथन में क्या क्या मिलते हैं हम लोगों को। तो एक टेरी फॉक्स था, उसने अच्छे काम किए थे। तो मैं भी सोचा कुछ मैं ऐसा काम करूं। लकीली या अनलकीली मेरा पिताजी बीमार पड़ा था, तो उस टाइम मेरा उतना पैसा था नहीं कि उनको अच्छे नर्सिंग लेके इलाज करें। तो आई एम लकी, मैं लकी मानूँ या अनलकी मानूँ कि मेरा पिताजी का डेथ मेरा हाथ में हुआ था। तो लकी भी अनलकी, तो उससे मेरा लर्निंग करके जो चीज़ मैंने पढ़ा था गूगल्स में, टेरी फॉक्स ने ऐसा रन करके चैरिटी किया था कैंसर पीड़ित के लिए। तो मैंने भी बाद में प्रेस क्लब ऑफ सिक्किम मिल के एक डेस्टिज होम के लिए स्टार्ट किए थे। तो यही है, मैं दुख जो मुझे दुख मिलता है ना, मैं दुख को मैं उसमें मैं सीरियसली वो नहीं लेता। सीरियसली इसलिए लेता हूँ कि उससे ज्ञान मिले, मेरा प्रैक्टिकली मैं उसके उतार देता हूँ। आपने वो दुख झेला है कि जब घर में कोई बीमार होता है और जब पैसे नहीं होते इलाज के लिए, तो वो बहुत ही दुख मिलता है उससे। तो उस दुख से निकलने के लिए आपने लोगों को काफी हेल्प किया। मैं ज्ञान, दुख को मैं ज्ञान में लेता हूँ ना, दुख ही ज्ञान है। तो लोगों को हेल्प करके आपको काफी हैप्पीनेस मिला होगा, काफी पीस मिला होगा। सो दैट आई थिंक यू कंसीडर योर सक्सेस, राइट? और वो मेडल से भी बड़ा सक्सेस होगा। सही बात सर, मेडल तो आते जाते हैं, लेकिन जो आदमी के दिल में जगह मिलती है ना, दिल के आदमी के जो दिल में बैठता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। So by helping people you have touched so many hearts, right? Well done, really amazing work you have done, Amar Subba. Well, आपको इच्छा है और बोलते हैं ना, जो चाहते हैं वही होता है। सही बात। So आपके केस में भी वैसा ही हो रहा है। God bless you, Amar Subba. Thank you so much. Well, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। Thank you so much. लेकिन क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं उस रैपिड फायर राउंड का, जहां आपको बहुत ही जल्दी सब क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आप उस रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हैं? एकदम रेडी। बिल्कुल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके हिसाब से बॉडी और माइंड को फिट रखने के लिए कौन से उस एक चीज की जरूरत है? हेल्थ, फिटनेस। ग्रेट। सो एक दिन में आप कितने ग्लास पानी पीते हैं? ग्लास में 3-4 लीटर्स वाटर। व्यूअर्स प्लीज रिमेंबर दिस। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स में आपके फेवरेट, आपके आइडल कौन? मेरा सबसे पहले मैं जिस इंसान से प्रभावित हूँ वो डेनी शेपा। ऑलराइट, आप हिंदी फिल्म्स देखते हैं? हाँ श्योर। तो आपकी फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सी है? मैं कोई भी अच्छी फिल्म, जैसे कि आमिर खान, सलमान खान वगैरह, जो भी अच्छी फिल्म वो देखते रहता हूँ। तो कोई नाम तो बताइए। नहीं, बहुत सारे वैसे। याद ही नहीं है। ओके। सो कौन सी बॉलीवुड हीरोइन के साथ आप डेट पर जाना चाहेंगे? एक्चुअली बॉलीवुड हीरोइन को पता नहीं, कोई भी अच्छी लेडी हो जिसका हार्ट अच्छी, उनसे मैं डेट। नाम तो बोल दीजिए। आप भी देख रहे हैं? मैं आपसे भी जा सकता हूँ डेट पे। मुझे तो बहुत खुशी होगी। ओके, तो आप हमें बताइए कि आपको खाने में कौन सा फेवरेट डिश पसंद है? मुझे इंडियन ही, रोटी चपाती और चिकन और सलाद। आज हम खाएंगे। ऑलराइट, सो अपनी वाइफ के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उनका सबसे अच्छा क्वालिटी कौन सा है? उनका सबसे अच्छी क्वालिटी है, वो ऑलवेज सपोर्ट मी, दिल से। दुख में कभी भी साथ नहीं छोड़ा मुझे। True love, isn't it? She truly loves you. आपके 2 बेटे हैं, तो आपके 2 बेटों को आप इस प्रोग्राम के जरिए क्या मैसेज देंगे? मेरा 2 बेटे नहीं, जितने भी यंगस्टर वो सभी मेरे बेटे जैसे। उनको बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ पाने के लिए जल्दीबाजी नहीं होती है। पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैशन, डिसिप्लिन, एंड्योरेंस, ये सब चीज़ होना जरूरी। और वन थिंग, जब ऊंचाई में आप पहुँचेंगे और छोटी सी चीज़ है वो डोंट फॉरगेट, वो ये घमंड मत करो। जब हम कोई भी काम करते हैं, बाद में अचीवमेंट का घमंड करते हैं, वो सब बेकार हो जाता है। तो घमंड भी नहीं होनी चाहिए आदमी को। मैं सभी यूथ को यही बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी आपके फैंस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक हिंदी गाना हो जाए। एक्चुअली मैं पहले थोड़ा बहुत गाता था, मैं गा लेता हूँ। कुमार सानू, किशोर कुमार इज़ माय फेवरेट सिंगर। तो एक कुमार सानू का गीत ही गा लेता हूँ। एक मुझे कुछ ख्याल आ रहा है। बिल्कुल। हे 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 सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको,
मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। वाह, क्या खूब गाया आपने। थैंक यू सो Thank you so much आपको अमर भी। सुब्बा, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपको हमेशा लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, आप हमेशा खुश रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी क्रू मेंबर को, टीम को। Our pleasure. Well, friends, that was our hero for today's show, the super marathon man from Sikkim, Amar Subba, for you. I hope you enjoyed our conversation in this program. Well, we will come back to you with more interesting personalities in this very show. Till then, please take good care of yourselves. For now, this is your host Florence saying goodbye to you. Till then, stay fit and keep smiling.